हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय ट्यूटोरियल्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अम्बिलिकस के बारे में। ओके, सबसे पहले जानेंगे हम व्हाट इज़ अम्बिलिकस, बेसिक पॉइंट्स, उसके बाद एनाटॉमिकल सिग्निफिकेंस एंड फाइनली आएंगे फिर हम एम्ब्रियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस पे। ओके, सो गाइस इस वीडियो को एंड तक देखिए। अम्बिलिकस, इट इज़ अ स्कार प्रेजेंट इन द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। ओके, सो अम्बिलिकस एक स्कार है जो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में प्रेजेंट है। इट रिप्रेजेंट साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड इन द फीटस। ओके, सो इट्स गोइंग टू रिप्रेजेंट साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड। सबसे पहले देखते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड क्या है। अम्बिलिकल कॉर्ड इट्स ए नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट्स डेवलपिंग एम्ब्रियो और डेवलपिंग बेबी टू द प्लासेंटा। ओके, सो जो डेवलपिंग बेबी और प्लासेंटा को आपस में कनेक्ट करती है। ओके, अब इसी फीटस में जिस साइट पे अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच होता है, ओके, फीटस में जिस साइट पे अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच होता है उसी साइट को रिप्रेजेंट करता है अम्बिलिकस। ओके, सो अब देखते हैं हम पोजीशन के बारे में। पोजीशन ऑफ अम्बिलिकस इज वेरिएबल। ओके, देखते हैं कैसे वेरिएबल है। In adults, umbilicus is located between L3 vertebrae and L4 vertebrae. Okay, lumbar 3 vertebrae और lumbar 4 vertebrae के बीच में आता है umbilicus in adults. In newborn, it is slightly at a lower level. Okay, so newborns में umbilicus is slightly at a, इससे थोड़ा सा नीचे located होगा. Okay, due to poorly developed pelvic region. Okay, क्योंकि जो newborns होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें pelvic region पूरा डेवलप नहीं होता है। ओके, इन ओल्ड एज इट कम्स डाउन टू लोअर लेवल। अगर हम ओल्ड पीपल्स की बात करेंगे, जो अम्बिलिकस है इट इज़ ऑल्सो लोकेटेड a bit lower than the normal level. Okay, because of diminished tone of abdominal muscles. Okay, so जो newborns होते हैं उनमें होता है because of poorly developed pelvic region, while as in old aged people उनमें क्या होता है, it is because of diminished tone of abdominal muscles. So this was about position of umbilicus. Okay, which is variable. adults में अलग है, newborns में अलग है और old age में umbilicus की position अलग होती है. Okay, now let's come to anatomical significance. Okay, it indicates the level of T10 dermatome. Okay, so that means जो umbilicus के around skin है it's going to be supplied by the 10th spinal segment. Okay, so second point है the level of umbilicus serves as watershed line for venous and lymphatic drainage. Okay, so इस point को समझते हैं। if this is the umbilicus और मैंने यहाँ पे एक transverse horizontal line draw की। okay, now जो lymph vessels and veins जो located होंगी above umbilicus, okay, so their flow is going to be upwards, और जो lymph vessels and veins located होंगी इस line यानी umbilicus के नीचे, their flow is going to be downwards. okay, so this level of umbilicus acts as a watershed line, यानी जो इसके ऊपर लोकेटेड है देयर फ्लो विल बी अपवर्ड्स, और जो इस लाइन के नीचे वेसल्स लोकेटेड है देयर फ्लो विल बी डाउनवर्ड्स. ओके, third point is it is among one of the important sites of portocaval anastomosis. Okay, so umbilicus is one of the 5 sites where portocaval anastomosis occur. So portocaval anastomosis क्या है, it is the anastomosis which is made between veins of portal circulation and veins of सिस्टमिक सर्कुलेशन. ओके, सो सिस्टमिक सर्कुलेशन और पोर्टल सर्कुलेशन के वेन्स के बीच का जो एनास्टोमोसिस होता है दैट्स नोन एज पोर्टोकेवल एनास्टोमोसिस. ओके, सो यहाँ पे अब क्लिनिकल एक कंडीशन आती है दैट्स नोन एज कैपेट मेड्यूसा. ओके, ये क्लिनिकल कंडीशन कब होती है, जब पोर्टल हाइपरटेंशन होता है. ओके, portal hypertension, or we can say when there is elevated pressure of the portal venous system. Okay, so इसमें क्या होता है, the veins dilate and radiate from the umbilicus. Okay, so अगर ये umbilicus है, these are the veins. Okay, so ये एक तो ये dilate हो जाएंगी, dilate के साथ साथ these veins will also radiate. Okay, and the flow will be like this. Okay, this appearance of veins is known as caput medusa. Okay, इसको caput medusa इसलिए बोलते हैं because it resembles the head of Medusa. Medusa is the mythical lady in Greek mythology. Okay, so इसको caput medusa बोलते हैं. Okay, so यहाँ पे एक अच्छा सा point आता है regarding caput medusa, that is despite caput medusa जो blood flow होता है it remains normal. Okay, and जो watershed line है वो break नहीं होती है. That means जो ये वाली वेसल्स है अबो द लेवल ऑफ अम्बिलिकस, जो ये वाली वेसल्स है जो इनका फ्लो होने वाला है इट रिमेन्स अपवर्ड्स, और जो अम्बिलिकस के लेवल से नीचे वाली वेसल्स है इनका जो फ्लो है इट रिमेन्स डाउनवर्ड्स. ओके, सो डिस्पाइट कैपेट मेड्यूसा जो ब्लड फ्लो है, जो वाटर शेड लाइन है इट रिमेन्स नॉर्मल. ओके, सो दिस वाज अबाउट एनाटॉमिकल सिग्निफिकेंस. नाउ लेट्स कम टू
एम्ब्रियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे इन दो डायग्राम्स की। ओके, सो जो ये वाला डायग्राम है इट इज़ ड्यूरिंग फीटल लाइफ, एंड जो ये वाला डायग्राम है इट इज़ आफ्टर बर्थ। ओके, आफ्टर फीटल लाइफ। ओके, सो इस वाले डायग्राम में अगर हम देखेंगे दिस सर्कुलर स्ट्रक्चर इट इज़ अम्बिलिकल रिंग। ओके, ये एंड दिस कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर दिस इज द अम्बिलिकल कॉर्ड। ओके, अम्बिलिकल कॉर्ड से पास होती है अम्बिलिकल वेसल्स। ओके, सो अम्बिलिकल वेसल्स क्या है? अम्बिलिकल वेसल्स आर अम्बिलिकल आर्टरी एंड अम्बिलिकल वेन। ओके, अम्बिलिकल आर्टरीज दो है और अम्बिलिकल वेन एक है। सो दिस इज द अम्बिलिकल आर्टरी, ये भी यहाँ से पास होती है एंड ये वाली आर्टरी भी यहाँ से ही अम्बिलिकल कॉर्ड से पास होती है। ओके, और अम्बिलिकल वेन ऑल्सो पासिस फ्रॉम अम्बिलिकल कॉर्ड। ओके, यहाँ पे मैंने अम्बिलिकल आर्टरी को, जो ये दो अम्बिलिकल आर्टरीज है, इनको मैंने ब्लू कलर से इसलिए रिप्रेजेंट किया है क्योंकि जो अम्बिलिकल आर्टरीज है ये कैरी करते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। ओके, फ्रॉम फीटस टू प्लासेंटा। ओके, वाइल एज जो अम्बिलिकल वेन है इसको रेड कलर से इसलिए रिप्रेजेंट किया है बिकॉज जो अम्बिलिकल वेन है इट इज़ गोइंग टू कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम प्लासेंटा टू फीटस। ओके, अम्बिलिकल वेसल्स के साथ साथ यहाँ पे एलेंटोइस और विटेलो इंटेस्टाइनल डक्ट या विटेलिन डक्ट। ओके, ये दो स्ट्रक्चर्स भी अम्बिलिकल रिंग को पास करते हैं। ओके, सो जो ये ग्रीन कलर वाला है दिस इज़ द ब्लेडर। ओके, और ब्लेडर का प्रॉक्सिमल पार्ट जो है, जो यहाँ पे अम्बिलिकल रिंग को पास करता है, दिस इज़ नोन एज प्रॉक्सिमल पार्ट इज़ नोन एज अलांटोइस। ओके, सो अगर अलांटोइस रह जाता है इसका रेमनेंट कहलाता है यूरेकस। ओके, सिमिलरली यहाँ पे जो इलियम है, इलियम का जो पार्ट अम्बिलिकल रिंग को पास करता है दैट इज़ नोन एज विटेलो इंटेस्टाइनल डक्ट। ओके, या हम कहेंगे विटेलिन डक्ट। ओके, इफ दिस विटेलो इंटेस्टाइनल डक्ट परसिस्ट्स उसे हम बोलते हैं मैकल्स डाइवर्टिक्यूलम। ओके, सो दिस डायग्राम वाज ड्यूरिंग फीटल लाइफ। ओके, यहाँ पे आते हैं अब। सो जो यहाँ से रेड कलर वाला स्ट्रक्चर है दैट इज अम्बिलिकल वेन। अम्बिलिकल वेन जो है आफ्टर बर्थ इट विल चेंज इनटू लिगामेंटम टेरिस। ओके, सो लिगामेंटम टेरिस जो है इट इज़ द रेमनेंट ऑफ अम्बिलिकल वेन। ओके, सो यहाँ पे भी मैंने रेड कलर से शो किया है, यहाँ पे भी मैंने लिगामेंटम टेरिस को रेड कलर से शो किया है। ओके, एंड दिस इज द अम्बिलिकस। ओके, इसी तरीके से अम्बिलिकल आर्टरीज दो है। So umbilical arteries will change into medial umbilical ligaments. Okay, so ये दो ligaments. Okay, these are the medial umbilical ligaments. Okay, so यहाँ पे भी umbilical arteries दो है, so medial umbilical ligaments भी दो है। Okay, उसके बाद आते हैं यूरेकस पे। ओके, सो जो यूरेकस है इट विल चेंज इनटू मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट। ओके, यहाँ पे एन है। ओके, मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट। ओके, सो मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट इज द रेमनेंट ऑफ यूरेकस। ओके, सो दिस वाज अबाउट दीज टू डायग्राम्स। अब हम देखते हैं एम्ब्रियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस के बारे में। ओके, सो सबसे पहला वाला पॉइंट है इट इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ 4 फोल्ड्स ऑफ द एम्ब्रियोनिक प्लेट। ओके, सो एम्ब्रियोनिक प्लेट के जो 4 फोल्ड्स है उनका मीटिंग पॉइंट है अम्बिलिकस। 4 फोल्ड्स कौन से हैं? 2 लेटरल फोल्ड्स है, एक हेड फोल्ड है और एक टेल फोल्ड है। ओके, सो ये जो चारों फोल्ड्स है ये मिलते हैं कहाँ पे? अम्बिलिकस के यहाँ। ओके, सो सेकंड पॉइंट है अम्बिलिकस इज ऑल्सो वायर 3 सिस्टम्स मीट। ओके, कौन कौन सा सिस्टम मीट होता है? डाइजेस्टिव, एक्सक्रीटरी एंड वास्कुलर सिस्टम। ओके, सो इस डायग्राम में अगर हम देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम का आता है विटेलो इंटेस्टाइनल डक्ट। ओके, सो दिस इज द विटेलो इंटेस्टाइनल डक्ट। ओके, एक्सक्रीटरी सिस्टम का आता है यूरेकस। ओके, दिस प्रॉक्सिमल पार्ट इज द यूरेकस। ओके, और वेस्कुलर का आता है अम्बिलिकल वेसल्स। ओके, अम्बिलिकल वेन एंड 2 अम्बिलिकल आर्टरीज। ओके, सो अम्बिलिकस एक्ट्स एज, ये एम्ब्रियोलॉजी में है। ओके, अम्बिलिकस एक्ट्स एज मीटिंग पॉइंट फॉर 3 सिस्टम्स। ओके, उसके बाद कहता है अम्बिलिकल वेसल्स, 2 आर्टरीज, 1 वेन पास टू एंड फ्रो बिटवीन अम्बिलिकल कॉर्ड एंड प्लासेंटा। ओके, सो यहाँ से पास करते हैं अम्बिलिकल वेसल्स जो हमने अभी पहले ही देखा। ओके, सो 4 एम्ब्रियोलॉजिकल रेमनेंट्स एट अम्बिलिकस। ओके, 4 एम्ब्रियोलॉजिकल जो रेमनेंट्स है जिसकी हमने बात की। ओके, दैट इज जो लिगामेंटम टेरिस है सबसे पहला वाला। ओके, लिगामेंटम टेरिस इज इट इज अ रेमनेंट ऑफ अम्बिलिकल वेन। ओके, उसके बाद 2 मीडियल umbilical ligaments. Okay, these are remnants of 2 umbilical arteries. Okay, similarly median umbilical ligament. Okay, so remnant of Eurecus. Okay, so guys, this was all about the umbilicus. Thank you guys for watching this video.